नाज़रीन आदाब, मैं हूं इमरान खान। जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। आइए करते हैं खबरों का आगाज अपने जुनूबी हिंद की। असदुद्दीन ओवैसी के स्टेज पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की दफा 124A के तहत गद्दार वतन का केस दर्ज कर अदालत में पेश किया। अमूल्या की गिरफ्तारी पर कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तो उसके वालिद भी अपनी बेटी से बेहद नाराज हैं और उसे जेल में सड़ाने तक की बात कही है। हालांकि दूसरी जानिब कुछ सख्तगीर तंजीमों ने अमूल्या मामले को लेकर मुजाहरा शुरू कर दिया है। खबर है कि कुछ नामालूम लोगों ने अमूल्या के घर पर हमला करके तोड़फोड़ की है। ऐसे हालात के लिए जहां कर्नाटक के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने इसके लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया है, तो कांग्रेस का कहना है कि ऐसे काम बीजेपी की आईटी सेल करती आ रही है। Information that when the Hindu Jagaran Vedike persons had gathered near town hall, to whom permission was given by the DCP Central to protest about yesterday evening's incident, one single girl, one individual came and sat there among those people with a placard in Kannada language showing Dalit Mukti, Kashmir Mukti and Muslim Mukti. And then these people asked her to go from there, and then the crowd gathered and we had to rescue that girl, and she has now been taken into our custody, or rather for her own safety along with her placard. She is under the supervision of my DCP Central. She has been moved over there. We'll find out where she has come from, what has happened, and what exactly is who exactly is responsible, who are the people. This is a part of a larger conspiracy to divide people on religion and caste wise. The parties who are unable to defeat the established government democratically, those who have lost the people's base, they're trying to create trouble, violence and divide the society. And they're using young minds, young people, women, even college students. So this is part of a larger conspiracy. That's what we have seen yesterday in Amulya case. Today also there's a young girl doing this. And they want to link all the issues from Pakistan to Kashmir to minorities to Dalits. So this is part of the larger conspiracy, and I am confident people will understand this. I'm not sure what exactly she was trying to communicate, because the police did not allow her to complete the sentence that she intended to say. As far as I have seen her previous videos or I've heard, she is not. She's an activist, but I'm not sure what she wanted to convey. So give her an opportunity to convey what she wants, and if it is anything to do with Pakistan or anything to do against the Constitution of India, it'll take whatever action that needs to be taken as per law. But dragging away someone even before trying to understand what it is, and I'm sure that the BJP IT cell is going to use this to spread more disharmony. अमूल्या मामले में केरल की सोशल एक्टिविस्ट कल्याणी ने मौजूदा हालात के लिए नफरत की सियासत को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि मुल्क के सामने तमाम जरूरी इश्यूज मौजूद हैं, लेकिन इस बार पर हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही बात होती है। Obviously, to me, this looks like a gimmick. There are so many important, serious issues that are ripping the country apart. We need to focus on those issues and solve them. A lot of political parties, and I'm sorry to say even the media, are benefiting from these gimmicks. Everybody in the social media and TV channels are discussing about very minor things. And in between all that, the major issues are getting ignored. This is very dangerous. We need strong leadership. We need the people, the educated people and the enlightened people to focus on the right issues, stand united for the betterment of the country. So many things happening across the country all the time, and much of it is without focus, much of it is cancelling the real important campaigns and real important issues. This is very sad and dangerous.
बेंगलुरु में ओवैसी की रैली में एक लड़की ने जो स्टेज पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, हालांकि लड़की ने बाद में हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाया और ओवैसी ने मंच से ही वाकये की सख्त मजम्मत की थी। तारीख थी 20 फरवरी और जगह थी बेंगलुरु। मंच सजा था शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत का, जिसमें एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को भी तकरीर करने के लिए बुलाया गया था। तकरीब चल रही थी और मदो लोग मंच पर आकर अपनी बात रख रहे थे। स्पीकर के तौर पर ओवैसी अपनी बात रखने ही वाले थे कि इस लड़की ने मंच पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये सुनते ही मुनाकिदीन के होश उड़ गए। आनन फानन में खुद ओवैसी ने उसके हाथ से माइक छीना और हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये लड़की वो सब कुछ बोल चुकी थी जिसमें इसे मुल्क से गद्दारी का मुल्जिम बना दिया। इसके बाद अमूल्या लियोना नाम की इस लड़की को मंच से उतार दिया गया। ओवैसी ने कहा कि वो इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं और उनका या उनकी पार्टी का अमूल्या से कोई ताल्लुक नहीं है। एआईएमआईएम सदर ने कहा कि उनके लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम हिंदुस्तान को बचाने के लिए है। वो किसी भी तरह दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, मुझे अफसोस है ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। एक मकामी सियासत जमात की शिकायत पर पुलिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ आईपीसी की दफा 124A के तहत मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। हाँ सर, अभी हम पुलिस कंप्लेंट दिया। आईपीएस ऑफिसर है डॉक्टर रमेश जी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, उनके हमने अभी कंप्लेंट रख दिया। नहीं वो देश विरोधी का काम किया, इसलिए हम। बेटी का कारनामा सुनकर वालिद के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। अमूल्या के वालिद का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं हुई। इसलिए कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है वो उसे दी जाए। ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. देखते ही देखते मुल्क मुखालिफ नारेबाजी की आंच कई शहरों तक जा पहुंची। बेंगलुरु में तो एबीवीपी ने इस वाक़े की मुखालिफत में एहतजाज किया और मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान के बयान पर मुस्लिम तबके में काफी नाराजगी देखी जा रही है। यहां पर सोशल मीडिया पर उनके लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं एनसीपी ने इसे एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच साजबाज का इल्जाम लगाया है कि इसी तरह का भाषण अकबरुद्दीन अवैसी ने देकर एमआईएम को जीवित करने का काम किया था
पुनः खोई हुई ज़मीन खोजने का काम हो रहा है, या कुछ ऐसे लोग जो समाज में बंटवारा करना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में वारिस पठान खेल रहे हैं क्या? हमें लगता है कि बीजेपी और एएमआईएम की फिक्स मैच लगातार चलती है, कहीं उस मैच का ये हिस्सा है क्या? ये सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के लिए चादर रवाना की गई। हर साल टीआरएस की जानिब से चादर भेजने की कड़ी में वजीर दाखिला ने चादर रवाना की। टीआरएस लीडर वारिस अली की क़यादत में भेजी जा रही चादर के मौके पर रियासत और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इस दौरान जहां सीएम के चंद्रशेखर राव कैबिनेट में महमूद अली को वजीर दाखिला बनाने को तारीखी कदम बताया, वहीं महमूद अली को बिला तफरीक काम करने के अंदाज की जमकर तारीफ की गई। पूरे पार्टी वालों को सब अपने जो भी टीआरएस हो, तेलंगाना के आवाम हो, सब अमन शांति से रहे, उन लोग सब खुशी से भर जाए उनके घर। जो देश में हालात चल रहे हैं वो हालात भी बाहर निकल गया, उससे उनको दुआ करते हुए यहाँ से चादर लेके महमूद अली साहब का आशीर्वाद से ये चादर अजमेर शरीफ में चढ़ाएंगे। अभी आज तक एक होम मिनिस्टर कभी मुस्लिम होम मिनिस्टर कभी नहीं बने, मगर केसीआर साहब ये हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं सोचते। काबिलियत पे महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर बनाए। महमूद अली साहब के दरबार में कभी भी कोई भी आओ, हिंदू आओ मुस्लिम आओ, सबको एक। आज यहाँ से हम टीआरएस पार्टी के लीडर्स ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 808 सालवा जो उर्स मनाया जा रहा है, वहाँ पे गिलाफ मुबारक को हम यहाँ से पेश करने जा रहे हैं और रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि यहाँ की आवाम में खुशहाली रहे। जो देश के हालात है वो हालात से हमें लड़कर सामना करने की तौफीक अता करे और यहाँ की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को इंसाफ मिले और रियासत तेलंगाना में जो मकसद से केसीआर साहब ने गोल्डन तेलंगाना का सपना देखा है, वो सपने को पूरा करने की तौफीक अता करे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अर्थ कल्चर फेस्ट का इनेकाद किया गया है और राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अर्थ कल्चर फेस्ट की शुरुआत की। ये फेस्ट 3 दिनों तक चलेगा और इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि इस तकरीब में वेद, सियासत और कल्चर पर चर्चा होगी ताकि बच्चों और नौजवानों को कल्चर से जोड़ा जा सके। अर्थ कल्चर फेस्टिवल का मकसद हिंदुस्तानी सकाफत, तारीख और रीति रिवाज से नौजवान नस्ल को वाकिफ कराना है। भारत की जो एसेंस है, जो इसकी आत्मा है, उसका अर्थ क्या है, उसका जवाब क्या है, ये शायद हमको इसमें खोजते हुए मिलेगा। और अर्थ के बहुत मायने हैं अगर उसको ढूंढने लगे। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, दैट्स व्हाट आई सेड टुडे, दैट if you, unless you start questioning, unless you have curiosity, you will not be able to find the solution, you will not be able to find answer. तो अर्थ, भारत का अर्थ ढूंढने के लिए तो सदियों चाहिए। तारीखी शहर हैदराबाद में रोबोट के बाद अब ट्रेन सर्विस का रेस्तरां शुरू हो गया है। खाने के शौकीन लोगों के लिए ये शहर अलग अलग तरह के जायके के लिए जाना भी जाता है। होटल एहकार, जहां पर इस नए तजुर्बे को कामयाब होने का दावा किया जा रहा है, वहीं आम लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोबोट के बाद वेटर की जगह लेने वाली इस छोटी ट्रेन का नजारा हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट का है।
जहां खाने वालों के ऑर्डर होते ही ये ट्रेन उनके पसंद की चीजें लेकर हाजिर हो जाती है। होटल इंतजामिया का दावा है कि इस नए तजुर्बे से होटल आने वाले लोग काफी खुश हैं। Along with two of my friends, we started this restaurant. Initially, we thought that we need to bring something new to Hyderabad, not just the food. Along with the food, also we want to bring some new theme to the Hyderabad. So we were exploring various options, and then we decided, this looks unique, and so. But though it is very complicated, whatever work we have done, but after seeing everybody, the customer, everybody is very happy. And they keep repeating. If you see last 2 months, a lot of customers keep repeating for the theme, and they are very enjoying repeatedly coming for the restaurant. कस्टमर्स में एक अलग तरह की खुशी का मरकज बने इस रेस्टोरेंट में शहरों के नाम से टेबल लगाए गए हैं। अपने पसंदीदा शहर के टेबल को मुंतखब कर आप मेन्यू के मुताबिक ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक किचन से खाने के आइटम के लिए ये ट्रेन ऑर्डर देने वाले टेबल पर पहुंच जाती है, जिसे एक खास जगह से चलाया जाता है। Taken inspiration from various railway stations. If you see all the walls filled with the railway station images, those are done by the Chennai artists. Actually, they work for the movies, so they did this artwork. Okay, you see Kachigoda station, Chennai Central station, also the Mumbai railway station, and one of the Finland station also is there. Normally what happens is we generally prepare food in kitchen, and then it's been placed on a small train, which is like a loco pilot kind of a train, and which comes out from the kitchen and then goes straight away to the table, which is needs to go to actually. So normally what happens in other restaurants is generally people like stewards who are food runners, they generally stay in the kitchen and then get the food to the table and then serve it on the table. So but what happens over here is manpower is completely cut down, and the technology which comes into the major role actually. वेटर की जगह रोबोट के इस्तेमाल के बाद होटल इंतजामिया ने इसके लिए ट्रेन वेटर का इजाद किया है। इस तजुर्बे के लिए बच्चों के साथ होटल जाने वाले कुनबे काफी खुश हैं। बिरयानी के अलग अलग जायके के लिए मशहूर निजाम हैदराबाद के इस शहर को नई टेक्निक के लिए भी जाना जाता है। हिंदुस्तान में इस तरह की पहल इस्तेमाल करने वाले होटल की पहल पर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। I feel like regular restaurants just bring the food, but this one has the food brought on a train, like a toy train, and it's very cool that it doesn't, that nobody really brings it, and it can go on it, and it's very cool. I like the restaurant and its theme. This is a fantastic restaurant for the family, entire family. And the food is great, and the staff are excellent, and the service is so beautiful. And this is my second visit within 15 days of my time, and we have already shared with our friends and family, and we would like to come back again and again with our family and friends. नई टेक्निक के मामले में जापान और यूरोप जैसे ममालिक को टक्कर देते रहने वाला ये शहर रेस्टोरेंट के लिए काफी मशहूर है। बिरयानी के अलावा